students, welcome back to AMR YouTube channel. So today we can discuss chapter number 2 in exercise 2.3. Okay, let's start. So this is the question number 1 in exercise 2.3. So let's take what are the figures here. So let's check question number 1 what they given students. You need to find that is these two triangles are similar or not. Okay, so let's find. So here solution, here angle A is equal to 60 degrees students. Angle A is equal to 60 degrees and angle P is equal to also 60 degrees. That means angle A is equal to angle P. Angle A is equal to angle P. You can write directly that is angle A is equal to angle P. And here angle B is equal to this one students. Angle B that is 80 and angle Q is also having 80. So you can write here angle B is equal to angle Q. Okay, A भी satisfy हो गया. अब और आप angle C is equal to angle R. Because angle C is having 40 degrees and angle R is also having 40 degrees. So therefore triangle ABC. Therefore triangle ABC is similar. This is the similar symbol. Already I told you in the introduction part. Please check once. ABC is similar to triangle. कौन सा other triangle है students? PQR. According to by which axiom? Angle rule or axiom you can say. Okay, please pause the video to note down all. Why we are saying only angle rule? Because we get angle A is equal to angle P. That means this is one of the angle, this is one of the angle, this is one of the angle. So these two triangles are similar triangles by axiom. Which axiom? Angle. Let's start question number 2. So what they given here students? Though they given two triangles. Now you have to find. So is this similar triangle or not? How can you choose? वहाँ तो हम पहले क्वेश्चन में डिग्रीज फाइंड आउट करे थे राइट. एंगल प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई हो गया था कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है. बट नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस वन? यहाँ तो साइड्स दिए हैं. अगर आपको साइड्स दिए ना तो रेशियो फाइंड आउट करना चाहिए. So ratios, 3 ratios must be same. That means equal आनी चाहिए. मैम कैसे आ सकता है ratios equal? चलिए बता देती हूँ. So you have to take AB divided by. Now I will choose the side that is QR. Because Y means, listen, QR is equal to, AB is equal to 2 divided by QR means 4. So if you cancel these things, 2 1 is 2, 2 2 is 4, we will get 1 by 2. Okay, so next ratio. Now I will choose 3 divided by 6. 3 divided by 6 भी 1 by 2 आएगा ना स्टूडेंट्स. इसीलिए मैंने क्या किया, ये AC वाला, ये वाला AC divided by PQ. AC divided by PQ that is equal to. So 3 divided by 6 we get 3 1 is 3, 3 2s are 6, that is 1 by 2 is our answer. Chaliye, what is the last ratio here? What we have students? So last one is BC. That means BC divided by which one? PR. BC divided by PR that is equal to 2.5 divided by 5. Am I right? So students, 2.5 can be written as 225 divided by 10. Am I right students? आपको पता है डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में. 2.5 is nothing but 25 by 10. So whole divided by 5. Now अब बताओ एक कैसे कन्वर्ट करते हैं और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. Here 25 divided by 10 whole divided by 5. So इस 5 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 5 by 1 लिख सकते हैं ना. 5 by 1 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट.
So likewise you can write here like this in the next step. 25 divided by 10 multiply with देखिए 5/1 डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में होने के लिए 5/1 रेसिप्रोकल हो जाता है. दैट मीन्स 1/5. 1/5. So 25 divided by 10 into 5. 10 into 5. You can cancel this. 5 5s are 25. 5 1s are 5. 5 2s are 10. So again we will get 1/2. Again we will get 1/2. That is same answer 1/2. देखिए पूरा ए बी बाई क्यू आर भी 1/2, ए सी बाई पी आर इज ऑल्सो 1/2 and बी सी बाई पी आर is also 1/2. That means what students? These two triangles are which one? These two. This one and this one. These two triangles are similar. Therefore आप ऐसे भी लिख सकते हैं triangle ABC is similar to triangle PQR. Question खत्म हो गया. Pause the video to note down everyone. Now let's start Roman number 3. Question number 3. Okay. So here also they given two triangles. Now you have to find whether these two triangles are similar or not. यहाँ भी सेम देखो साइड्स दिए हैं राइट स्टूडेंट. सो हाउ कैन यू चूज नाउ? मान लो नाउ यू कैन चूज दिस 3 डिवाइडेड बाई 6 मान लो. 3/6 मान लो पहले. तो आंसर कितना आएगा? 3/6 तो 1/2 आएगा ना. सो रेशियो LP डिवाइडेड बाई DP. That means 3 divided by 6. We get 3 1s 3, 3 2s 6. That means 1/2 आ गया. बाकी रेशियोज भी 1/2 ही आनी चाहिए. अगर नहीं आए ना तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते हैं. ओके. सो नाउ यू कैन चूज हियर. देखिए स्टूडेंट्स ये तो सिमिलर ही नहीं होगा क्योंकि 3/6 तो 1/2 आ गया है. बट 2/5 करने से नहीं आएगा आंसर. 2/5 करने से नहीं आएगा आंसर. सो यू हैव टू चूज 2/4. 2/4 इज नथिंग बट 1/2 राइट. सो आएगा. दैट मीन्स कौन सा साइड स्टूडेंट्स? ये दोनों. ओके. MPDE. राइट डाउन MPDE. MP divided by DE. MP divided by DE. So what is MP? 2 divided by 4. So 2 1s 2, 2 2s are 4. So what is our answer? 1/2 is our answer. So but बाकी का देखो रिमाइनिंग कौन सा साइड बचा हुआ? LM. राइट. LM is the remaining here. And अभी कौन सा बचा? EF is the remaining. अगर ये दोनों रेशियो भी 1/2 आए तो ये सिमिलर हो जाएगा वरना नहीं होगा. ओके. सो LM डिवाइडेड बाय EF. That is equal to what is LM? 2.7 divided by 5. 2.7 divided by 5. Now 2.7 can be written as 27 divided by 10 and this 5 will perform multiply by 5. Okay. So cancel तो करने को नहीं आएगा. Am I right students? क्योंकि 27 divided by 5 10s are 50. So पूरा का पूरा डिफरेंट है ये. See 1/2 is equal to 1/2. Here LP divided by DP is equal to MP divided by DE. But LM divided by EF is not equal to these two. Am I right? So clearly you can write like this. Therefore triangle LMP is not similar to कौन सा triangle? Which triangle? DEF. So write down DEF. Simple. Pause the video to note down. So now the question number 4. What we have students? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? एक एंगल दिया हुआ है. सो दोनों इक्वल है और बाकी के साइड्स दिया हुआ है. सो हम फाइंड आउट करेंगे 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ओके. सो एंगल
angle M is equal to angle Q. Why students? Those are equal because of those angles are having 70 degrees. इसलिए angle इक्वल होगा. एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q. अब बाकी के रेशियोज देखेंगे, वो बाकी के रेशियोज भी इक्वल आनी चाहिए. अगर इक्वल नहीं है तो ट्रायंगल और सिमिलर नहीं होगा. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. चूज, मान लो MN रेशियो बताओ. MN डिवाइडेड बाय ये वाला 2.5 एंड मान लो 10. 2.5 डिवाइडेड बाय 10. सो 10 का कौन सा साइड है स्टूडेंट्स? QR. 10 का कौन सा है? QR. QR डिवाइडेड बाय व्हाट इज MN? 2.5 sorry 2.5 divided by 10. So 2.5 can be written as 25 divided by 10. So यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा into 10. So now you can cancel this one here like 5 2s are 10, 5 5s are 25. Okay, 5 1s 5, 5 2s are 10. मतलब कितना आएगा आंसर स्टूडेंट्स? 1/4. 1/4. क्या ये राइट है? हम बाद में बोलेंगे क्या ये राइट है या रॉन्ग है. ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट अगर हम ML बचा यही है ना साइड 5 and 5, ML डिवाइडेड बाई PQ करते तो 5/5 क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 आएगा. मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होते. सो हमारा प्रोसेस रॉन्ग हो सकता है. तो इसीलिए आप क्या करना होगा? इंस्टेड ऑफ चूजिंग दिस वन यू नीड टू चूज MN डिवाइडेड बाय, कौन सा चूज करना स्टूडेंट्स? MN डिवाइडेड बाय PQ. ये वाला चूज करो, PQ. आंसर आएगा क्या या नहीं आएगा? चेक करेंगे अभी. सो नाउ इंस्टेड ऑफ चूजिंग दिस QR you need to choose MN, ये वाला MN divided by PQ. मान लो ये दोनों. Okay, PQ. So what is MN? 2.5 divided by 5. So 2.5 can be written as 25 divided by 10. So in this denominator क्या होगा? मल्टीप्लाई में 5. Okay, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा. So 5 1s 5, 5 5s are 25. 5 1s 5, 5 2s are 10. So what is our answer? 1/2. ओके, मान लो 1/2 आ गया. और नेक्स्ट रेशियो भी है स्टूडेंट्स, चेक दिस वन. अभी एक रेशियो भी है. अगर वो रेशियो भी 1/2 आ गया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. ओके, सो कौन सा साइड्स है? MN एंड अनदर वन इज QR. सो MN डिवाइडेड बाय QR लिखो. MN not ML divided by QR. What is ML? That is 5 divided by 10. So easily you can cancel 5 1s 5, 5 2s are 10. That means 1/2. See, हमारा आंसर तो 1/2 इक्वल आ गया ना. Therefore these two triangles are similar. कौन से ट्रायंगल है स्टूडेंट्स? Therefore triangle MNL is similar to triangle PQR by which rule? कौन सा रूल स्टूडेंट्स? देखो इधर एंगल एक आया है, साइड दैट मीन्स साइड एंगल साइड. बाय साइड एंगल साइड रूल triangle MNL similar to triangle PQR. Pause the video to note down everyone. So now check question number 5. Same, it is related to before question students. So angle A is equal to angle F. Why? Because of those are having 80 degrees. Okay, everyone knows that. So now coming to sides. So sides क्या होना चाहिए? Equal होना चाहिए. Okay, corresponding sides are proportional होना चाहिए. So now check this one. अगर आपने 3 लिए है, 3/6 क्या होगा स्टूडेंट्स? 1/2, right? So take that one. BC divided by EF, that is equal to 3/6. So 3 1s 3, 3 2s are 6. That is 1/2. Okay. Now बाकी का साइड कौन सा है स्टूडेंट्स? Which one is another side? ये भी, ये वाला है ना, ये भी
divided by DF, ये वाला side, AB divided by DF, that is equal to, what is AB? 2.5 divided by 5. अब बताओ 2.5 को हम कैसे लिखेंगे? 25 divided by 10. So in the denominator we have 5, so write down multiply by 5. Okay, 5 ones 5, 5 5s are 25. Again 5 ones 5, 5 2s are 10. See, again we have a reminder that is 1 by 2. मतलब corresponding sides तो same आ गए हैं, right? So therefore triangle ABC is similar to triangle DEF. By which rule, ma? Angle side, that means side angle side rule. Side angle side rule. साइड एक है और एक साइड है और एक एंगल है, इसीलिए मैं यस रूल है ना, पता है ना आपको. सो वो रूल के प्रकार ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. राइट डाउन एवरीवन. सो क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट क्वेश्चन. So you need to find what we need to find. Triangle DEF is similar to triangle PQ or PQ, ये वाला R students, okay, PQ. और how can you find out? So यहाँ तो दो ट्रायंगल्स, I mean 2 एंगल्स दिए हैं, बाकी का एंगल नहीं दिए. कैसे फाइंड आउट करते हो बाकी का एंगल भी बताओ. कैसे मतलब, see everyone knows that sum of interior angles in a triangle is equal to 180 degrees. सबको पता है, अगर पता नहीं है तो ध्यान दो. ओके मतलब मान लो this is one of the triangle, so if we have 60 degrees here, then we need to get this is also 60 and this is also 60, because in equilateral triangle both angles are same. क्योंकि अगर आप 60 plus 60 plus 60 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा. am I right? अगर आपके पास 60 नहीं है, मान लीजिए ऐसा है 70 80, सो इधर तो 70 दिया हुआ है, इधर 80 दिया हुआ है. अब बताओ यहाँ क्या होगा, वही पता लगाएंगे. लेट्स ऑब्जर्व हियर. ओके 180 डिग्रीज. सो नाउ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये वाला ट्रायंगल में देखो स्टूडेंट्स, कौन से एंगल है? एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 degrees. We need to find angle F. So how can you find? Very simple. Angle D is having 70 degrees. Already given है ये वाला. Am I right? So what is angle E? Angle E is 80 degrees. So write down here 80 degrees plus angle F we don't know. Write down angle F as it is. That is equal to 180 degrees. Am I correct? So now tell me what is 70 plus 80. 70 plus 80. 150. 150 degrees plus angle F. That is equal to 180 degrees. Now angle F is equal to 180 degrees. This plus 150 is in left side. So we need to move to right side. Then plus 150 will become, क्या होगा students? Minus 150. So now tell me what is 180 minus 150. Angle F is equal to 30 degrees. Angle F is equal to 30 degrees. So आपको पता है यहाँ क्या होगा students? यहाँ क्या होगा? Take another color. Green color. Okay. Which angle? 30 degrees होगा. So देखो 70 plus 80 plus 30 करो, गारंटी से 180 डिग्री आ जाएगा आपको. Am I right everyone? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो. ओके नाउ सी दिस वन. ये वाला ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो. हियर 80 है, हियर 30 है, तो एंगल पी कितना आएगा बताओ स्टूडेंट्स. सो लेट्स फाइंड दैट वन. व्हाट वी नीड टू गेट हियर, व्हाट वी नीड टू गेट ये वाला ट्रायंगल में. ओके ये यहाँ लिखो. सो एंगल पी प्लस एंगल Q plus angle R is equal to 180 degrees. So what is angle P? We don't know, so write down as it is. Plus what is angle Q? 80 degrees plus 30 degrees, right? Is equal to 180 degrees. So angle P plus 80 plus 30, 110.
110 degrees is equal to 180 degrees. Am I right? So angle P is equal to 180 degrees. So now this plus 110 will become minus 110 to move right side. Okay, angle P is equal to, now tell me what is 180 minus 110. 180 minus 110, that means 8 minus 1, we get 7, that means 70 degrees. Angle P is equal to 70 degrees. So write down 70 degrees here. 70 कितना आया स्टूडेंट्स? 70 डिग्रीज. एम आई राइट? आप भी एंगल्स ड्रॉ करो और सॉल्व करो. ओके ओके स्टूडेंट्स. सो नाउ therefore अब बताओ स्टूडेंट्स, एंगल D इज इक्वल टू, so angle D is equal to angle P because those are 70 degrees. Am I right? Am I right everyone? So next one, angle E. अब बताओ एंगल E is equal to, एंगल E तो 80 डिग्रीज है. सो 80 डिग्रीज हर एक के ट्रायंगल में क्या होगा? एंगल Q is equal to 80 डिग्रीज. Am I right? सो बाकी का एंगल क्या है स्टूडेंट्स? एंगल F. Angle F is equal to angle R because of those are 30 degrees. So similarly note. So therefore triangle DEF is similar to triangle PQR by कौन सा रूल स्टूडेंट्स? एंगल by angle. राइट डाउन ये रूल, angle rule. Pause the video to note down everyone. Okay, now question number 2. What they given here students? In a triangle ODC is similar to triangle ODA. Okay, ODC कहाँ है? ODC ये वाला triangle and another triangle ये वाला ODC. Sorry, I did question mistake. That is OBA. Okay, ODC this triangle and OAB this triangle. So they are saying that these two triangles are similar. Okay, it's right. Similar ho to angle BOC is having 125 degrees and angle CDO is having 70 degrees. इधर देखिए एंगल BOC मतलब यहाँ 70 डिग्रीज क्यों लिखे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि एंगल BOC मतलब वेयर इज B? दिस वन BOC. दैट मीन्स एंगल कहाँ फॉर्म हुआ है? ए वाला फॉर्म हुआ. तो व्हाट इज दिस? 125 डिग्रीज. ओके. सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड DOC DCO. कौन सा है स्टूडेंट? DOC मतलब ए वाला एंगल एंड DCO. वेयर इज DCO? ओके, ये वाला एंगल. एंड DOC तो ये वाला एंगल है. DCO मतलब DCO बीच में वाला एंगल मतलब ये वाला. ओके, नेक्स्ट OAB मतलब मतलब ये वाला जो बीच में वाला एंगल आया ना स्टूडेंट्स, ये वाला. ये तो वो है मतलब यहाँ फाइंड आउट करना है और ये तो C है मतलब यहाँ फाइंड आउट करना है. यहाँ ये है तो यहाँ फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आई विल गिव यू ए हिंट स्टूडेंट्स. अगर आपने C फाइंड आउट किया है तो ये भी फाइंड आउट करोगे बिकॉज ऑफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. क्यों मैम, क्यों इक्वल होगा? बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स और इक्वल इन ट्रांसवर्सल लाइंस. अगर आपको ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पता हो तो ये जरूर पता होगा. ओके, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स और इक्वल होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. आप एक बार गूगल में सर्च कर लो ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, अदरवाइज आई विल शेयर यू ए वीडियो. ओके, सो लेट्स फाइंड solution. So what we need to find? First of all you need to find angle DOC. Okay, DOC मतलब यहाँ वाला DOC, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, सो DOC. ओके, angle DOC that is equal to
दैट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स टेल मी, ए वाला एंगल बताओ, पूरा एंगल कितना होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्रीज वाला, 180 डिग्रीज वाला, दैट मीन्स एंगल डी वो बी है कि नहीं, एंगल डी वो बी मतलब ये पूरा ट्राइंगल स्टूडेंट, ए वाला लाइन, ए वाला लाइन, एंगल डी वो बी। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स, आर गेटिंग माई वर्ड्स, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, अच्छे से समझ आ जाएगा। डी वो बी प्लस प्लस, एक मिनट, इज इक्वल टू एंगल डी वो बी प्लस प्लस, सॉरी नॉट प्लस, वी नीड टू रिमूव दिस वन, ये 125 को निकालेंगे तो यही आएगा ना स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग, सो विच एंगल दिस इज, बी वो डी, बी वो सी, ओके, सो एंगल डी वो सी इज इक्वल टू, डी वो बी कितना होगा स्टूडेंट्स, ये तो स्ट्राइट एंगल है, दैट मीन्स 180 डिग्रीज ना, इज इट राइट, सो 180 में से 125 को हम कैंसिल करना होगा, ओके, एंगल डी वो सी, एंगल डी वो सी इज इक्वल टू 180 degrees minus 125 degrees. So what we get students, 180 में से 125 जाता तो कितना होगा, 55 degrees होगा, so angle DOC is equal to 55 degrees. So put here angle DOC कहाँ है स्टूडेंट्स, एंगल DOC, DOC मतलब ये वाला कितना होगा 55 degrees, रिमेम्बर दिस वन, 55 डिग्रीज, सो इधर 70 डिग्रीज है, इधर 55 डिग्रीज है, तो एंगल सी कितना होगा, सो ऑल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है, सिंपल, पिछले वीडियो में हम करे थे ना स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन राइट हियर इजीली देयरफॉर एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल वो इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, so what is angle D here, 70 degrees plus angle C we don't know, we need to find that one, plus what is angle वो तो 55 degrees अभी में हमने find out किया था, so 55 degrees is equal to 180 degrees, so 70 plus 55, what is 70 plus 55, what we get 125, 125 degrees, wait a minute, need to adjust, okay, 125 degrees plus angle C is equal to 180 degrees. So now angle C we need to find. So angle C is equal to 180 degrees. So plus 125 will become minus 125. So what is our answer here students? Angle C is equal to 120 में से 125 जाता तो कितना होगा? That is 55 degrees. So angle C is 55 degrees. So what is angle C here? Angle C कितना होगा students? ये वाला 55 degrees. So write down there. लिख डालो. Angle C is equal to 55 degrees बोल के. 55 degrees. Okay? ओके, सो हम क्या क्या फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, एंगल डी वो सी मतलब ये वाला कंप्लीट, एंगल सी मतलब डी वो डी सी वो, दैट मीन्स एंगल डी सी वो इज इक्वल टू 55 डिग्रीज, एंगल डी सी वो इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। नाउ यू नीड टू फाइंड एंगल वो ये बी, लास्ट वन एंगल वो ये बी मतलब ये वाला वो ये बी, सो दिस एंगल वी नीड टू फाइंड। सी स्टूडेंट्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ये, एम आई राइट? सो ऑटोमेटिकली यू कैन राइट हियर 55 डिग्रीज, 55 degrees because interior alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal। so कौन से एंगल स्टूडेंट्स, एंगल डी सी वो ए वाला एंगल डी सी वो इज इक्वल टू डी सी वो इज इक्वल टू ए वाला एंगल वो ये बी, एंगल वो ये बी, सिंपल, खेल खत्म। प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन एवरीथिंग। Now let's start question number 3 in exercise 2.3. What they given here students? Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. So this is a trapezium figure ma. This is a trapezium
figure. So in the trapezium figure, only one, this side is a parallel side, so another two lines is not in parallel sides. Okay, okay students. So this is the trapezium that named by A B C D, that is A B C and D. नेक्स्ट डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, ये वाला ज्वाइन करना है, बी डी एंड ए सी, दीज टू आर डायगोनल्स. ओके, बी डी एंड ए सी, देखो ए सी बी डी दोनों डायगोनल्स है ट्रेपीजियम के. विथ ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी या ऑफ कोर्स ए बी डी सी के पैरेलल ही है ना स्टूडेंट्स, इज इट राइट? यस. सो इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट वो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट वो, मतलब ए वाला पॉइंट वो, ए वाला पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो. ओके, यू कैन राइट हियर वो. ओके, so before going to start the solution, first of all I need to show you what are the transversal lines and what are the rules of the transversal lines. Okay, so let's start. See here, this is a transversal line, मतलब एक पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करता ना, तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे. ओके, नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू, ये वाला एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. आई एम राइट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. नेक्स्ट ये नीचे वाले एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. एंड ये दोनों एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. क्यों स्टूडेंट्स, क्यों इक्वल है सब कुछ? बिकॉज ऑफ दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर आपको कुछ भी ऐसे दिखे ना, सो मान लो इन द प्लेस ऑफ 2 यू हैव 50 डिग्रीज, देन इन द प्लेस ऑफ 6 भी आप क्या करना चाहिए, 50 डिग्रीज ही रखना चाहिए. क्यों? आपको टीचर पूछे, क्वेश्चन डाले कि क्यों 50 डिग्रीज ही रखना है, क्योंकि मैम बिकॉज ऑफ दोज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अंडरस्टैंड एवरीवन? एंड नाउ सो और कुछ भी है इसमें, ये वाला देखो, इंटीरियर एंगल्स. सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट एंगल्स मतलब एंगल 2 एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5. एंड ये वाला भी एंगल 1, इसका अल्टरनेट एंगल 6 है. एम आई राइट स्टूडेंट्स? सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, वेरी गुड. एंड नाउ अभी बताओ एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है? एंगल 3 का एंगल 8. ओके, अब बताओ एंगल 4 का एंगल 7. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7. दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल्स आर equal. So you have to know about these things. So remember last those points. Okay, so अभी ट्रांसवर्सल लाइन का इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, बस ये क्वेश्चन में उतना इंट्रोडक्शन पार्ट काफी है तुम्हें. ओके, सो लिसन दिस वन. सो स्टूडेंट्स नाउ अब देखो, ए बी इज पैरेलल टू बी सी, इज इट राइट? तो यहाँ दो लाइन कट हुए है, एक डी बी और एक ए सी, दो लाइन्स कट हुए हैं. तो नाउ लिसन केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली. दिस एंगल इज इक्वल टू विच एंगल? दिस एंगल इज इक्वल टू विच एंगल? दिस. एम आई राइट? सो मान लो ये 1 है, ये 2 है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो यू कैन राइट हियर सोल्यूशन एज, सोल्यूशन लिखो, ए बी पैरेलल टू डी सी. ये तो गिवन है ना स्टूडेंट्स, हमको गिवन है. सो इन अ ट्राइंगल ए वो बी एंड ट्राइंगल डी वो सी, ये वो बी एंड ट्राइंगल डी वो सी. कौन सा स्टूडेंट? ये वो बी मतलब ए वाला एंगल, सॉरी ए वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल डी वो सी मतलब ए वाला ट्राइंगल. ये दोनों सिमिलर है, already they given similar. Okay, we need to prove that why they are similar, and what we need to show that students, we did not write here what we need to show that OA divided by OC
is equal to OB divided by OD. OA divided by OC is equal to OB divided by OD. So you need to show this one. Okay, so now see here. So in these two triangles, already I told you angle 1 is equal to angle 2 because interior opposite angles, because those are interior opposite angles. Okay, अब बताओ स्टूडेंट्स. सो मान लो this angle, ये वाला angle, this angle is 3, angle number 3, and this angle is angle number 4, angle number 4. So those are alternate, I mean interior opposite angles, right? So आप ये भी लिखो angle 3 is equal to angle 4 because those are interior opposite angles. And last one, see students, अगर आप यहाँ angle 6 है, मान लो this is angle 6 and this is also angle 5, as you wish. Okay, we forgot to write here. This is angle 5 and this is angle 6. Okay, that means angle 5 is equal to angle 6. क्यों students? Because कभी भी हमने देखो students, ऐसा हो ना तो ये एंगल 60 डिग्रीज हो तो ये भी 60 डिग्रीज होगा. दैट मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles are equal. तो वही मैंने इधर लिखा है. कौन सा स्टूडेंट्स? वो ये वाला. यस, vertically opposite angles are equal. Understand students? So now अब बताओ, सेपरेट ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको आसान हो. सी हियर, एंगल ये इधर देखिए, एंगल ये इज इक्वल टू, ये देखिए एंगल 1 कहाँ पर है स्टूडेंट्स? इधर एंगल 1 ये यहाँ है. दैट मीन्स एंगल ये इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 2 कहाँ है? ये है. दैट मीन्स एंगल सी. सो एंगल ये इज इक्वल टू एंगल सी. एंड अब बताओ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कहाँ है? एंगल 3 मतलब एंगल बी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 4 मतलब एंगल डी. ओके, नेक्स्ट वन. सो लास्ट वन, एंगल 5 कहाँ है स्टूडेंट्स? एंगल 5 इज वो इज इक्वल टू एंगल 6. दैट मीन्स वो एंगल वो इज इक्वल टू एंगल वो. सो therefore you can write here triangle AOB is similar to triangle ODC. Am I right? By which rule students? Angle rule. By angle rule. Okay, ये तो similar आ गए. Okay, you can write here like, therefore finally we get the answer here. So therefore ये वो मतलब ये वाला साइड, ये वो डिवाइडेड बाय वो सी. क्यों स्टूडेंट्स, क्यों रेशियो हुआ है? ये इज इक्वल टू वो बी डिवाइडेड बाय वो डी. That is equal to AB divided by DC. How it will come? कोई बता सकते हो कैसे आया है स्टूडेंट्स ये? क्योंकि listen carefully here. So angle A is equal to angle C. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुआ है. Am I right? These two angles are same. So next क्या हुआ है स्टूडेंट्स? एंगल B is equal to angle D. मतलब ये वाला एंगल सेम हुआ है. मतलब इधर एक बात ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, ये वो सो अब हियर बिग फिगर में ऑब्जर्व करो, ये वो डिवाइडेड बाय वो सी. ये दोनों क्यों इक्वल है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसका इंटीरियर एंगल इक्वल है. मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है. एम आई राइट एवरीवन? सो अब बताओ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वाला. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है. मतलब एंगल 4 ये लाइन में ही है ना स्टूडेंट्स. सो दैट वो बी डिवाइडेड बाय वो डी, ये दोनों इक्वल है. इसलिए आप सेपरेट
फिगर्स ड्रॉ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, वरना इसमें ही फाइंड आउट कर सकते हो एज योर विश. ओके, सो नाउ नेक्स्ट ए बी डिवाइडेड बाय डी सी क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हियर. सो वेयर इज एंगल 5? दिस वन. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. दैट मीन्स ये वाला ए बी, सॉरी ए बी डिवाइडेड बाय डी सी, बिकॉज ऑफ दोज आर पैरेलल लाइन्स. वही ना डायगोनल बना है. Is it clear everyone? So pause the video to note down everyone.